Hello, Assalamu alaikum, and thank you so much for joining us for another podcast on my channel. Here goes nothing. Today, the day totally belongs to India. They beat Australia. They've qualified for the final. Unfortunately, Pakistan में final नहीं होगा, but I would still go on to say कि एक अच्छा tournament हम arrange करने में कामयाब हुए हैं. तो obviously in the future, this is something we can reference in order to get more tournaments scheduled in Pakistan. लेकिन as of now, the party is going to conclude in Dubai instead of Lahore. But with that being said, India played really well. कल भी एक अच्छा exciting semi-final है between South Africa and New Zealand, and both those teams are desperate to clinch an ICC trophy क्योंकि South Africa obviously एक final हारे हुए हैं recently. They would want to get their hands on the trophy. New Zealand on the other hand काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंटली सेमीफाइनल और फाइनल से पहुंचती आ रही है, बट जो फाइनल हर्डल है उसको ओवरकम नहीं कर पाती. तो ये डिस्कस करने के लिए एक स्टार स्टडेड पैनल ने मुझे ज्वाइन किया है. आई हैव विद मी दानियाल रहमान, Aurangzeb Jamshed, and obviously Usman Salam was going to be joining us shortly. But before that, we're going to start with Danial and Aurangzeb. So Danial, first of all, I'm going to come over to you. India आपकी favorites थी when we were obviously assessing this tournament शुरू में. तो I would say maybe nothing has surprised you in terms of them qualifying for the final, या कोई एक चीज़ है या कोई एक आधा player है who has taken you by surprise अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें leading up to today, and obviously what you expect in the final. Thank you, Ali. I think yes, कुछ aspects हैं India के which have been surprising, and the biggest of them is के how they haven't missed Bumrah at all. I felt के Bumrah being the best bowler in the world and how he has performed for India in the previous tournaments, also in the Test series they just had with Australia, where he carried their bowling attack. वहां पे मुझे लग रहा था कि बुमराह क्योंकि इंजर्ड हैं तो हो सकता है कि इंडिया की बॉलिंग अटैक इतना थ्रेटनिंग ना हो और वो उनको मुश्किल लगे विकेट्स लेना स्पेशली अप फ्रंट लेकिन आई फील लाइक द टीम सिलेक्शन हैज बीन कम्प्लीटली ऑन पॉइंट दे हैव 8 बैट्समैन और 6 बॉलर्स आई थिंक सिक्स और 7 बॉलर्स who've been doing really well for them or so their team selection has been on point. I bet on India as favorites initially in the tournament because even though Rohit Sharma and Virat Kohli had been struggling to find form in other formats of the game, they have been doing really well in ODI. और मुझे कोई डाउट नहीं था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. Their squad is definitely the best lineup I've seen in across the entire tournament. So और कुछ लोग ये बात भी करते हैं कि यार इंडिया सिर्फ एक वेन्यू पे खेल रहा है और ये एक एडवांटेज है उनके लिए विच इज़ फेयर. सही आप कह सकते हैं लेकिन अगर वो पाकिस्तान में भी खेलते तो पीसीबी का प्रपोजल ये था कि वो लाहौर में सारे मैचेस खेलते तो तब भी वो एक ही वेन्यू पे खेल रहे होते और ये एडवांटेज तब भी होता उनके पास. तो इट्स या एज अ पाकिस्तानी फैन थोड़ा सा डॉन्टिंग है इंडिया को देखना इतना सक्सेसफुल लेकिन इट्स ऑल फेयर. आई फील के क्रिकेट उन्हीं टीम्स को रिवॉर्ड करती है जो कि अच्छी प्रिपरेशन करें जिनकी स्क्वाड अच्छी हो जो परफॉर्म अच्छा करे ऑन द डे एंड इंडिया हैज बीन डूइंग दैट. सो या नहीं, आई एग्री विद यू. और अगर मैं याद करूं जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था उसमें नो डाउट इंडिया वाज वंस अगेन द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, बट इट्स अ प्रूवन मतलब फैक्ट या द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट के इंडिया पिचेस के साथ बहुत ज़्यादा टेलरिंग कर रहा था बिफोर द मैचेस, एंड दे डेफिनेटली ट्राई टू डू समथिंग बिफोर द फाइनल एज वेल. और जो गड़ा उन्होंने खोदा था उसी में गिर गए थे. वेदर दिस हैपेंस टू देम इन द फाइनल कि एक ही आप ग्राउंड में खेलते जाओ और इवेंचुअली अनदर टीम कम्स एंड स्पॉइल्स द पार्टी, दैट्स येट टू बी सीन. बट yeah, I agree with you. I mean, a great team and worthy of playing the final regardless of them. And I think आपने ही ये पॉइंट रेस किया था कि इवन इफ इंडिया डिड ट्रैवल टू पाकिस्तान उन्होंने अपने सारे मैचेस तो लाहौर में खेलने थे. तो ऐसा भी कोई एडवांटेज नहीं है जो कि उनको नहीं मिलना था हैड दे ट्रैवल टू पाकिस्तान. बट औरंगजेब, कमिंग ओवर टू यू, you also had India as your favorites for the final. अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो yes, it was an inexperienced bowling lineup, बट मुझे आज एडम जैम्पा भी काफ़ी हद तक ऑफ कलर लगे हैं. वॉज इट बिकॉज ही डिडंट हैव एनीवन सपोर्टिंग हिम ऑन द अदर हैंड क्योंकि संगा वाज गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, ऑब्वियसली ही कुडंट अप्लाई द प्रेशर. और जम्पा के केस में भी बैट्समैन वर इजीली एबल टू नेगोशिएट हिज ओवर्स, या जनरली डू यू फील के स्टीव स्मिथ एज अ कैप्टन टुडे वाज ऑफ कलर? बिकॉज 265 वाज अ रीजनेबल टोटल टू गिव इंडिया अ फाइट. लेकिन काफ़ी हद तक अगर हम चले, अगर हम होलिस्टिकली उस मैच को देखें और हम डिफरेंट फेजेस से निकल आए तो इंडिया को इस पूरे रन चेस में कोई ख़ास इशू हुआ नहीं है. जी, आई थिंक
265 wasn't a bad total, और वो हमें नजर भी आया कि बिल्कुल एंड में जाके इंडिया ने वो चेस किया है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था या मैच उनके हाथ से निकल रहा था, बट स्टिल इट वाज अ गुड इनफ टोटल। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने काफी कैचेस ड्रॉप किए, आपके सामने ही है, और दैट कॉस्ट देम अ लॉट आई वुड से। अगर सेकंड ओवर में रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और आप अच्छी न्यू बॉल के ऊपर कोहली को एक्सपोज करें, जो कि आई थिंक वो अभी रिसेंटली जितने भी अभी उनकी, अगेन आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, बट लाइक अभी रिसेंटली उन्होंने ब्रांड न्यू बॉल नहीं खेली, और जो एक ही मैच में जिनको बहुत अर्ली उनको आना पड़ा उसमें वो आउट हो गए मैट हेनरी के सामने। सो आई थिंक अगर आपने कोहली को वनरेबल करना है तो आपको उसको दूसरे तीसरे ओवर में ग्राउंड में लाना पड़ेगा एज अ बैटर। अगर वो 10वें 12वें ओवर तक आ रहा है और ऑलरेडी 60 ऑन द बोर्ड लगा हुआ है, तो he'll just play his own way, which he has against Pakistan, against Australia. So I think catches का ज़्यादा इशू रहा है। कैचेस का ज़्यादा इशू, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे ये भी बोलूँगा कि इट वाजंट द यूजुअल ऑस्ट्रेलिया दैट वी सी, ठीक है। और मुझे मतलब आई मीन आई वाज लुकिंग एट स्टीव स्मिथ, एंड ऑब्वियसली स्टीव स्मिथ के बारे में अगर हम बात करें तो ही हैजंट, आई डोंट थिंक इज़ वन एनी आईसीसी ट्रॉफी एज अ कैप्टन। और ऑब्वियसली उनसे कैप्टनसी छीन भी ली थी इन्होंने, क्योंकि वो जो सैंड पेपर वाला स्कैंडल हुआ था। तो आई कुड फील कि स्टीव स्मिथ रियली वांटेड टू विन एन आईसीसी ट्रॉफी एज अ कैप्टन एंड ही वाज डेस्परेट टू डू सो। बट दानियाल, आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्टूपिड शॉट जो उन्होंने खेली थी। एक टाइम पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को असर्ट कर रहे गेम पे, और जिस तरह एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ साथ साथ खेलते जा रहे थे, 300 वो सीम लाइक अ पॉसिबिलिटी ऑन दिस ट्रैक। बट हम यही डिस्कस कर रहे थे आपस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कि गोल यही था कि यू नीड ग्लेन मैक्सवेल टू कम इन द लास्ट 5 to 7 overs rather than in the last 13 overs. But वो जो brain fed moment, and Steve Smith was trying that for a while, right? वो उन्होंने किया, and then like they couldn't even get to 65. तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्ट्रैटेजी और ओवरऑल इनिंग्स को how would you define that based on what you saw today? I felt like for the first half of the innings, Australia did really well, considering they'd lost a wicket very early on in their innings. Or it did look like they would struggle. Like in Travis Head, I think what he did really well was he scored at a very good rate. So people like Steve Smith or Marnus Labuschagne, they could actually take their time when they came in. Steve Smith, he looked good. उन्होंने वैसे खेला तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। बस एक क्रूशियल टाइम पे उनकी विकेट चली गई। अगर वहां पे वो खड़े रहते, एक एंड वो संभाल लेते, तो फिर गाइज लाइक कैरी और मैक्सवेल, दे कुड हैव अटैक्ड, और ऑस्ट्रेलिया प्रोबब्ली अगर 300 तक पहुंच जाता तो दैट वुड हैव बीन रियली कंपेटिटिव टोटल। इवन रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इन देयर पोस्ट मैच कमेंट्स दे मेंशन्ड के we felt like our bowling attack did really well in restricting Australia to 260. अगर ज्यादा होता तो स्कोरबोर्ड प्रेशर होता उनके ऊपर, और फिर ये फ्रीडम ना होता विराट कोहली के पास या केएल राहुल के पास या श्रेयस अय्यर के पास कि वो आराम से पहले सेटल इन हो जाएं। ऑब्वियसली रोहित शर्मा ने भी उनको एक अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन दे डिड लूज विकेट्स। और आई एग्री विद औरंगजेब, इफ ऑस्ट्रेलिया हैड हेल्ड ऑन टू देयर चांसेस, तो इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम। हमने ये अभी तक इतना, ये हर टूर्नामेंट में वैसे होता है कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर इतना एक्सपोज नहीं होता ड्यूरिंग द ग्रुप स्टेजेस और द अर्ली पार्ट्स ऑफ द नॉकआउट स्टेजेस एज वेल, और किसी एक पॉइंट पे जाके वो वल्नरेबल पोजीशन में आ जाता है, लेकिन फिलहाल इट्स बिन Daniel, I'm कोपिंग going to वेल। add a question. I'm going to add a question. Shreyas Iyer, KL Rahul, and Virat Kohli back to back, right? Or adding Akshar Patel in the middle. Do you think this is the best middle order when it comes to combating spin in the entire world? It does seem like it at the point. I mean, Virat Kohli or KL Rahul, they're all very good players of spin. Or Shreyas Iyer or Akshar Patel को I think ये role दिया है कि they have to accelerate and let the other guys make the tempo of the innings. So it does look like it's doing really well. I think the only thing that could restrict them in the final is कि उनको early, जैसे औरंगजेब ने बताया कि early wickets अगर हो जाएं और they don't have a good enough score on the board, तो फिर थोड़ा pressure भी होगा on pair to score quickly. If you let people like Virat Kohli and KL Rahul settle into their innings, तो फिर you have a difficult task to get them out later on. Yeah, Okay, also so just to add to what Daniel said, it feels like India is the only team which is actually playing with 12 players rather than 11. I think I've spoken it in our private chat as well, that it's the only team that has a batsman like Jadeja coming at number 8. There is no other team in this tournament which has that quality of a batter at number 8. And then they have six bowlers. So let's say today Kuldeep had an off day. He didn't pick up any wickets. Carey was like hitting him for boundaries. So he just bowled 8 overs.
and the others chipped in. Like Pandya, for example, today he only bowled 5 overs. So I think credit goes to their selection team as well, Rohit and Gambhir and Agarkar, that they picked this combination which nobody else has in this tournament. Well, just Yeah, to add to that, I think yeah. people don't highlight the importance of guys like Jadeja and Akshar Patel. इंडिया में हमेशा कोहली और शर्मा को प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन आई थिंक जडेजा हैज बीन सेंसेशन फॉर इंडिया. इतनी बड़ी लग्जरी है कि एक ऐसा ऑलराउंडर हो जो कि आपको 4 की इकोनॉमी या 5 की इकोनॉमी से 10 ओवर डाल दे, विकेट्स ले, फिर बैटिंग भी अच्छी करे. इज मतलब उन्होंने क्लच परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं. वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुझे याद है न्यूजीलैंड वाला. और तो जडेजा इज अ रियल लग्जरी टू हैव. आई थिंक ही इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल इन ऑल फॉर्मेट्स राइट नाउ. I mean, how well could Pakistan do with a player like Jadeja? So, okay, we're going to introduce Usman Salam, aka Ozzy now. Ozzy, thank you so much for joining. Finally, you made it. You made it in. Usman, we have obviously discussed the Pakistan. पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, the Australia versus India semi-final in detail. Now, looking at India and their chances in the final, it's going to be either South Africa or Australia. Both teams, in my opinion, are well-rounded. Again, do you see? Okay, I'm going to ask you. Do you see India? Is there any way that India can lose the final? Like, matlab, everything seems to be going in their favor, other than Rohit winning the toss. So maybe if Rohit does end up winning a toss, could that be something that contributes to them losing? So yeah, give us your opinion in terms of what you expect from India in the final. Hello, everybody. Assalamu alaikum. यार तेरी आवाज सही नहीं आ रही by the way. यार मुझे लगता है कि I don't think so. I don't see India losing it from here. I think India is playing extraordinarily. I think India के पास वो सब कुछ है जो पाकिस्तान के पास नहीं है. इंडिया का जो एक ऑलराउंडर है खुशदिल शानी पाकिस्तानी, वो तो पाकिस्तानी ऑलराउंडर है, लेकिन इंडिया के जैसे जडेजा है वो 5 टाइम्स है खुशदिल शाह से. तुम्हें पता है जिस तरह की वो हरकतें कर रहा होता है, जिस तरह की बैटिंग बॉलिंग करता है वो. और आई मीन इंडिया की टीम जो ना आई फील लाइक इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. दे आर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल. आज भी मैं दुआएं कर रहा था कि यार कुछ ना कुछ हो, लेकिन वो स्टीव स्मिथ अपनी उंगलियां खाते खाते अपने नाखून खा के पता नहीं क्या कुछ खा लिया होगा उसने इस वक्त तक. लेकिन आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनी वे any chance for them to come back, and it was a stupid decision to bat first. And I think India is probably going to lift the trophy, and they're going to take it away from Pakistan very easily. Or yeah, it's going to be a huge slap on a Pakistani, on every Pakistani cricket fan. कि आपका हमसाया ले गया आप एक तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और उसका फाइनल दुबई में हो रहा है. सबसे बड़ा तो स्लैप ये है. They don't have the balls to even get the चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल located in पाकिस्तान. और दूसरी बात यह है कि अभी जब इंडिया लेके जाएगा तो वो फिर पूरा का पूरा आपके अंदर से बेसिकली हाथ डाल के ट्रॉफी लेके निकाल के अपने घर ले गया वो. So you understand? And I don't think so India is going to lose from here, man. I feel like India Like is Usman, let me push back. So okay, like in terms of the final being in Dubai, that was something like अगर पाकिस्तान आज final खेल भी रहा होता अपना semi-final जीत के, तो final तो दुबई में होना था ना. तो like we can't do much about it. But you did talk about Jadeja and all of these players. What team do you prefer to see in the final, provided you want them to win? Do you think South Africa has a better chance against India, or do you think New Zealand has a better Yeah, I chance? think New Zealand has a better chance. I feel like New Zealand is a better chance because New Zealand एक दफा खेल लिया हुआ है. और दूसरी बात ये है इंडिया का एडवांटेज भी है. इंडिया ने सारे मैचेस एक ही इसी पिच पे खेले हैं. तो अगर यानी कि वो तो ये भी है जैसा कि मैं जब बाहर चला जाऊँ एक ही पिच पे खेलता रहूँ, सब लोगों को बुलाता रहूँ कि आप लोग आते रहो, मैंने इस पिच से हिलना नहीं है. आई मीन ऑफ कोर्स दे हैव एडवांटेज, but at the same time we have to give them, they have like their team is like based on all rounders. तुम देख सारे के सारे ऑलराउंडर हैं. नीचे 8 मोहम्मद शमी भी ऑलराउंडर बना हुआ है, अपनी तरफ से मार लेता है अपनी तरफ से. तो वो तो शुक्र है वो चक्रवर्ती थोड़ा सा उनका जो है हल्का प्लेयर नहीं कह सकते, वो पूरा अपना कर देता है बॉलिंग के अंदर, क्योंकि बॉलिंग उसकी बहुत ही ज़बरदस्त है. वो आई फील लाइक ही इज़ लाइक 2 टाइम्स अबरार, पाकिस्तानी अबरार. तो वो अपनी बॉलिंग में वो कसरत निकाल देता है. लेकिन अदर देन दैट उनके सारे प्लेयर्स they have their peak form, or they're performing their duties very well. Like उसको कहा है कि तूने बॉल करनी है और आउट करना है तो वो आउट करके देता है. पाकिस्तानियों की तरह नहीं, यानी कि खुशदिल शाह को कह दो कि वो आ जाए तो फिर तो पता ही क्या होता है खुशदिल शाह क्या करता है, आके दूसरी टीमों को खुश करता है वो आगे. Those are fair points, and obviously, like Usman, every Pakistani fan is disappointed. Or, लेकिन we have to move on, and as a Pakistani cricketing nation, we have to move on. और जानी ऐसे मेरा माइक सही नहीं है, माइक सही कर ले अपना, थोड़ा जोर से बोल.
अच्छा ओके ठीक है, वो बाद में हो जाएगा जब एक बार इसको हम कर रहे होंगे ना सेट, तो हो जाएगा। ठीक है। अभी औरंगजेब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, क्योंकि अब सिचुएशन ये है कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में अभी सेमीफाइनल्स चल रहे होते हैं, तो पीछे पाकिस्तान में ना अगली सीरीज का स्क्वाड अनाउंस हो जाता है बिकॉज वर एलिमिनेटेड आफ्टर द फर्स्ट राउंड। और दिस इज द केस राइट नाउ। आज सेमीफाइनल था पहला, लेकिन आज पाकिस्तान में कैप्टन और कोच जो है ना वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अगली सीरीज़ के। तो ऑब्वियसली काफ़ी चेंजेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, T20 स्क्वाड में, ओडीआई स्क्वाड में। रिजवान आफ्टर लूजिंग ऑल 4 of his मैचेस एज T20 कैप्टन हैज़ नाउ बिन ड्रॉप्ड, and also he is no longer the captain of the team. Salman Agha is the captain of the team. Tell me about these changes. How do you see these changes? और मतलब डिटेल में आप बताओ कि like first, like we're going to talk about the inclusion of Shadab as second, we're going to talk about inclusion of Shadab as the vice captain. लेकिन उससे पहले overall are you happy with what has happened? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान को ओडीआई से भी ड्रॉप होना चाहिए था, या शाहीन और हारिस राउफ को T20 से भी ड्रॉप होना चाहिए था। बट हाउ डू यू सी दिस? मतलब ये सर्जरी का लेवल क्या है? माइनर है, मेजर है, या मतलब लोकल एनेस्थीसिया वाली? इट डजंट रियली मेक सेंस। इट्स लाइक यू जस्ट शफल्ड थिंग्स अराउंड ताकि पब्लिक को आप कुछ टाइम के लिए अपीस कर लो। बट हाउ डू यू सी इट फ्रॉम एन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू? यार आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, तूने जो सर्जरी का लेवल कहा है बेसिकली वो ये है कि आप हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए गए हो और डॉक्टर ने आपको पोन स्टोन देके वापस भेज दिए। इनडायरेक्टली बेसिकली ये हुआ, बट आई वुड लेट औरंगजेब कंटिन्यू बिकॉज ही नोज बेटर। आई थिंक उस्मान, वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू विद दिस बिकॉज आई थिंक काफी गुस्सा स्टोर्ड अप है, तो वेंट आउट करने के लिए आपको मौका देंगे। एक बार औरंगजेब अपनी बात कर उस ले, बेचारे का फिर आई अपडेट वुड वांट नहीं यू रहा, टू आपने उसे पोन एलैबोरेट स्टोन ऑन दे द दिए पॉइंट स्टोन। कि निकल जाओ यहाँ से आगे से। ओके Okay, औरंगजेब, so ओवर टू यू। I will start with what Usman said. Ke India has an advantage playing in Dubai. So in 1 year's time, you will have your team in Colombo playing all their matches in Colombo. तो अगर आप में इतनी तपड़ है, तो आप भी फाइनल खेल लें कोलंबो में। आपको किसने रोका है? ठीक है। So the point is के अगर वहां तक जाना है और आपने इस लेवल पे इंडिया को स्लैप बैक करना है या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, तो उसके लिए आपको टीम जो है वो उसमें चेंजेस लानी पड़ेंगी, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। However, जो मैंने आज स्क्वाड देखा है, आई अंडरस्टैंड साइम इज इंजर्ड, फखर इज इंजर्ड एंड दे वॉक इन टू द T20 टीम, एटलीस्ट साइम फॉर श्योर। तो लेकिन आज जो मैंने स्क्वाड देखा T20 का, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू मच अबाउट ओडीआई क्रिकेट राइट नाउ, क्योंकि अभी वो हमारा फोकस नहीं है, पर T20 के अंदर मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं कि इन्होंने किस तरह से टीम को फॉर्मुलेट किया है। तो एक तो ये सलमान अली आगा को एज कैप्टन लाए हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन थी कि शदाब को ले आए, लेकिन उनको फिर यही मसला है हमारे मुल्क में कि सोशल मीडिया और मीडिया की पहले बिल्कुल बात नहीं सुनते थे, और ये आई थिंक जब से मोहसिन नकवी आए तो पूरी की पूरी टीम ही सोशल मीडिया पे बनती है। मतलब ये देखते हैं कि किसका ट्रेंड सबसे ज्यादा चल रहा है तो उसको टीम में ले आते हैं। और उसमें मैंने कुछ चीजें नोट की हैं कि जिस तरह के शदाब को ये लोग लेके आए हैं। अब शदाब की कुछ परफॉर्मेंस मैं देख रहा था। शदाब इज करेंटली प्लेइंग प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी विच हैज एंडेड एक्चुअली। उसका जो फाइनल है वो अब अप्रैल में होगा, लेकिन अभी वो पॉज हो गई है। सारे मैचेस हो चुके हैं। शदाब वाज द कैप्टन एंड इंटरेस्टिंगली इन द लास्ट 4 मैचेस शदाब डिडंट बॉल। सो शदाब ने बॉलिंग ही नहीं की और शदाब वाज प्लेइंग एज अ बैट्समैन। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल रहे हैं कि जी शदाब को हमने डोमेस्टिक में भेजा, उसको हमने कहा आप जाके लंबी बॉलिंग करें, तो वो लंबी बॉलिंग किधर है? वो बॉलिंग ही नहीं है। यार बेसिकली अ, सीन ये है कि शदाब का जो करियर है ना वो खत्म हो चुका है। इसका जो थोड़ा बहुत बचा कुचा करियर है वो बिकॉज ऑफ व्हाट्स हिज नेम सकलान मुश्ताक की वजह से उसको पीछे से मिलता है कि भाई इसको खिला लो, तो वो उसको डाल लेते हैं टीम के अंदर। ऐसा ही इज डन मैन, ही इज डन, खत्म हो चुका है यानी वो लेकिन उठल है इसमें समझ लो। इसमें मैं वही बात करूंगा औरंगजेब, बिफोर यू कंटिन्यू ऑन शादाब, लेकिन हमने तो बड़ी इनकी पीआर के थ्रू वीडियोस देखी थी कि पता नहीं अपनी लेग स्पिन इंप्रूव कर रहा है सकलान मुश्ताक के साथ। डू यू थिंक ये वो सब ड्रामा था एंड इट्स द सेम केस विद शादाब अगेन? आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं ये देखूंगा कि वो उसकी बॉलिंग में रेव्स कितने आगे हैं, ये कितने आगे हैं। मेरा काम है कि मैं देखूंगा कि टीम को आपने बनाया किस तरह। सो अगर हम अभी स्क्वाड पे नजर डालते हैं, अरफात मिन्हास वॉक्स इन दिस T20 टीम, लेकिन चूंकि आपने शदाब को खिलाना है हर मैच एज एन ऑलराउंडर, तो आपने अरफात मिन्हास को, यानी कि ना हमारा मसला ये कि हम अपने सीनियर प्लेयर को कंफर्ट देने के लिए ना उसका बैकअप सबसे पहले निकाल देते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी है कि यार रिजवान, अच्छा अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी में एज अ बैकअप कीपर लेके गए हैं, ओडीआई में रिजवान कैप्टन है, बैकअप कीपर ही नहीं है। आप चेक कर लें स्क्वाड।
नो हसीबुल्ला, नो उस्मान खान, देयर इज नो बैकअप कीपर। 5 मैच थे आपके चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर आप फाइनल तक जाते हैं उसके लिए आप बैकअप कीपर लेके जा रहे हो उस्मान खान, लेकिन कि यार ये उस्मान इसलिए टीम खान में के रखा है कि बैकअप और कीपर है। क्योंकि उस्मान खान को आपने एक टूर कराना है ना, वो आपने उसको बस टीम में रखना होता है, कंपनसेट करना होता है कि जी वो यूएई छोड़ के आ गया तो अब वो उसको लेकिन अब खिलाना उस्मान है। खान अब ओडीआई उसको में हमने कह बैकअप दिया कि कीपर आपने, नहीं है उस्मान सो खान। आई एम दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसको T20 में रख दिया है कि अब चलो न्यूजीलैंड का एक टूर तो इसका हो जाएगा ना, तो बाकी जो टी है उसको मिलने हैं ओडीआई के, वो खैर है कोई नहीं, वो उसको जरूरत नहीं है, वो T20 के 5 के मिल जाएंगे उसे। लाइक लिटरली ऐसा लगता है कि यार आपने उसका बैकअप रखा ही नहीं है ओडीआई के अंदर, उस्मान खान नहीं है ओडीआई के अंदर, देयर इज नो हसीबुल्ला, देयर इज नो रोहेल नजीर। अगर रिजवान इंजर्ड हो जाता है वहां पे 3 मैचों में कीपिंग कौन करेगा? ये टीम तो T20 की टीम तो वापस आ गई होगी। सो ये लेकिन माय और एक से पुराना मसला नहीं, आपको याद है 2019 वर्ल्ड कप में हमारा बैकअप विकेट कीपर इमामुल हक था जब सरफराज अहमद टीम में नहीं, थे, वो रिजवान वो वहां और से चीज रखे। है, उसमें रिजर्व में रिजवान यूके में बैठा हुआ था। वो अगर आप सरफराज इंजर्ड होता है तो आप, अगर वो ऐसे इंजर्ड हो गया कि वो टूर्नामेंट नहीं खेल सकता, आप उसको निकाल के स्वैप कर सकते हैं। फिर टीम में और सीनियर प्लेयर थे, हफीज था, चलो आप कैप्टनसी किसी और को दे सकते हैं। ये टोटली डिफरेंट केस है। सेकंड ये है कि अब T20 में अगर हम वापस आते हैं तो आप ये नोट करें कि इन्होंने क्या किया कि बाबर और रिजवान एक ग्रुप है, और शाहीन और हारिस रऊफ शायद एक ग्रुप है। तो इन्होंने दोनों को ना तोड़ दिया है, मतलब इन दो को कहा कि तुम ओडीआई खेल लो, दो को कहा T20 खेल लो। सो व्हाट आई वांट टू आस्क इज के शाहीन अफरीदी को आपने T20 में रखा है किस बेसिस पे? लाइक अगर आपको लग रहा है कि अच्छा वो न्यू बॉल से एक अच्छा थ्रेट है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आपने उसकी डेथ बॉलिंग एबिलिटी देख ली है, आपको पता है कि यार वो डेथ बॉलिंग में चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो वो पिटेगा। तो वो अनलेस के वो अपनी स्किल को बहुत इंप्रूव करके आए, जिसमें टाइम चाहिए आपको। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से T20 टीम के अंदर वापस आ गया। उसके बाद लास्टली मैं कुछ प्लेयर्स के आपको बताऊंगा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो कि सीधा सीधा वॉक इन होते थे इस टीम के अंदर, जिस तरह रफात मिनास मैंने आपको बताया है। उस तरह एक प्लेयर जो वॉक इन होता था आपकी T20 टीम के अंदर, वो था देयर वाज एन ओपनर Orjan इन द Afif. ओडीआई टीम फॉर श्योर, अजान वैस। इजीली वॉक इन था, मतलब उसके डबल 100 हैं, ओडीआई में उसने मारा हुआ है। उसके बाद आपके बहुत सारे और ऐसे प्लेयर्स थे, जैसे कि हुसैन तलत अभी T20 टॉप किया है एज अ बैट्समैन, तो वो उसको भी आपने नहीं कंसिडर किया। बट माय पॉइंट इज के ठीक है, आपने बैटिंग में सारा यंग टैलेंट डाला है एंड आई होप कि वो परफॉर्म करें। लेकिन बात यह है कि इनकी डोमेस्टिक में अभी हारिस का मैं आपको बिग बैश का रिकॉर्ड दिखा देता हूँ, ओ सॉरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। उसका आपको डोमेस्टिक का, आई थिंक उसकी कोई 10 मैचों में एक 50 आती है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट गाय, ही इज अ गुड टैलेंटेड इंडिविजुअल, बट हम परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड कर रहे हैं या हम बस रेपुटेशन को रिवॉर्ड कर रहे हैं? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। और ये जो टीम आप बना रहे हैं, 4 स्पिनर आपने अब डाल दिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसमें आप जहां पे शायद पता नहीं कितना टर्न होगा बॉल, और जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में गए तो आपने एक स्पिनर डाला है। लेकिन औरंगजेब, लाइक आई, इट्स हार्ड टू डिसएग्री विद यू ओवर एनीथिंग। मुझे फिर मैं एक बाद में, अभी शायद ये वो साइकिल है जिसमें हम ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे। ऑब्वियसली 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हमने हार्डली एनी ओडीआई क्रिकेट खेली थी, एंड वी जस्ट वन द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, विच ऑब्वियसली नाउ सीम टू बी अ फ्लूक, लेकिन हम वी वॉकड इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी एज फेवरेट्स। अब हमारे पास ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा है, हम अब ये तो कंप्लेंट कर ही नहीं सकते आगे जाके कि, मतलब दनियाल, आई एम गोइंग टू आस्क दिस ओवर टू यू, कि हम अब ये तो नहीं कंप्लेंट कर सकते कि हमारे पास ओडीआई क्रिकेट नहीं है। अब हम हमेशा ही कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स के बाद एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। अब क्लियरली नजर आ रहा है कि चूंकि आपका T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 में, तो आपने ओडीआई को बैक बर्नर पे डाल दिया है। तो इजंट दिस व्हाई अ सेलेक्टर या डायरेक्टर या कोच लाइक मेक्स हिज मनी, कि टू इंश्योर कि यार ओडीआई क्रिकेट चाहे वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, लेकिन यू गेट योर कॉम्बिनेशन राइट, ताकि टीम उसको बिल्डअप करे। जैसे भी औरंगजेब ने बात की, लग तो ऐसी रहा है कि ये सारे बस काम चला रहे हैं कि चल बाबर तू नाराज ना हो जाए, तू ओडीआई खेल ले, रिजवान तू भी नाराज ना हो जाए, तू ओडीआई क्रिकेट खेल ले जाके, ठीक है। अभी उस्मान खान और हारिस 2 विकेट कीपर T20 के साथ ट्रैवल करें, उन्हीं में से कोई ओडीआई वाला बना देंगे। तो लाइक आई डोंट नो कि मतलब प्लानिंग क्या है, बट डू यू सी एनी मेथड टू दिस मैडनेस व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 2 years? फ्रैंकली आई डोंट। अगर आप आज आकिब जावेद और जो सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको देखें, और साल पहले जो मोहसिन नकवी ने की थी अपने हमारे T20 वर्ल्ड कप के डिबेकल के बाद, तो आपको उसमें सेम जुमले नजर आएंगे। वही बात है कि यार हमने आगे जो टीम बनेगी वो इंटेंट से खेलेगी, हमने एक पॉजिटिव वो डायरेक्शन शो करनी है क्रिकेट में, हमने रन रेट की टेंशन नहीं लेनी है, हमने छोटे छोटे इम्पैक्ट भी अगर कोई प्लेयर करे वो भी बहुत है हमारे लिए। तो बातें यही हैं जो पहले भी हो रही थी, लेकिन वही रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। और आई डोंट इवन ब्लेम द प्लेयर्स। आप हम सब यहाँ पे जॉब करते हैं, अगर आपकी मैनेजमेंट साल में 5 बार चेंज हो,
how do you expect to perform under these kind of circumstances? So मैं तो I feel bad for the players actually, लेकिन लेकिन दानियाल there's मैं पुश बैक करूंगा, अगर मैनेजमेंट 5 दफा चेंज होना तो दूसरी मैनेजमेंट चेंज हुआ नीचे वाले भी चले जाते हैं। यहाँ मैनेज तो कुछ हद तक तो प्लेयर्स पे भी ब्लेम जाता है। वो आई एग्री कम्प्लीटली, लेकिन आई ऑल्सो मतलब कुछ लेवल पे मैं उनके साथ एम्पैथाइज भी करता हूँ कि यार इस सिचुएशन में आप एक लेवल ऑफ कंटिन्यूटी जब तक लेके नहीं आओगे तो सक्सेस नहीं आ सकता। तो ये आई डोंट रियली फ्रैंकली आई डोंट सी दिस चेंजिंग, लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव मुझे लगी है, आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट किसी एक फॉर्मेट से इन्होंने हमारी बॉलिंग अटैक को थोड़ा चेंज किया, बिकॉज फॉर द पास्ट 3 or 4 years इट्स बिन रियली ऑब्वियस कि शाहीन, हारिस, नसीम, they have not been effective. We can't do with these bowlers. चलो हमारे बैटिंग लाइनअप ने, आई कैन नेम आउट सम इंस्टेंसेस जहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे साउथ अफ्रीका वाला मैच था अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्होंने हमें बचा लिया एक सिचुएशन से, लेकिन आवर bowling has been terrible and it's something we've been known for in all our history in cricket, लेकिन अब जब से bowling हमारी फारिग हुई है तो टीम ही फारिग हुई है। तो एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव है कि यार द लाइक्स ऑफ शाहीन और हारिस उनको एक फॉर्मेट में एटलीस्ट ड्रॉप किया। आई होप, आई डोंट नो कि अब ये आगे कितना इसको सस्टेन कर पाते हैं, वापस वो आ जाएंगे टीम में जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा एकदम से, लेकिन फिलहाल ये पॉजिटिव है एक सिर्फ मेरे लिए इसमें। वन पॉजिटिव फॉर मैं दानियाल एक चीज, जी, सॉरी, औरंगजेब, या गो अहेड। जी मैं एक स्क्वाड में आपको चीज बताना चाह रहा था। जैसे अभी सारे बात कर रहे थे, उस्मान ने भी बात की, दानियाल ने भी बात की, आपने भी बात की कि ऑलराउंडर्स हैं, इंडिया के पास ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारा T20 स्क्वाड उठाएं तो इसमें जो जेन्युइन ऑलराउंडर सो कॉल्ड आप कहते हैं वो शादाब है, और जहांदाद एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। तो अगर आप ऑलराउंडर्स की तरफ जा रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड हमारी प्रेस किस तरह के सवाल करती है। तो इसमें भी मुझे ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहे। मतलब आप रफात मिन्हास को आपने किस तरह बाहर निकाल दिया टीम के अंदर से। हुसैन तलत कैन बॉल एज वेल, आप उसको ट्राई करें, ठीक है। आपने उसको भी नहीं रखा T20 टीम के अंदर। सो ये लोग फिर से वही स्पेशलिस्ट वाली साइड पे चले गए। दी ओनली डिफरेंस इन द T20 टीम राइट नाउ इज के बाबर रिजवान नहीं है, तो मतलब आपने एंकर प्लेयर निकाल दिए। तो बेसिकली आप टोटल हाई टोटल की तरफ जा रहे इसका हैं, जिसके चांसेस हैं ब्राइट। और इसमें मैं मैं ये नहीं औरंगजेब एक कहता। और आपसे एंकर प्लेयर को आई वांट टू कैप्टन ऐड अ बना क्वेश्चन। दिया। मैं सिर्फ हाँ, मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ औरंगजेब कि लग ये रहा है कि इन्होंने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया T20s में, इनके हिसाब से बॉलिंग बिल्कुल ठीक थी, बॉलिंग बिल्कुल ठीक थी, ऑलराउंडर्स बिल्कुल ठीक थे, इन्होंने सारा का सारा मलबा शायद बाबर और रिजवान की ओपनिंग पर डाल दिया है। तो डू यू थिंक दिस इज द थॉट प्रोसेस के अगर हम ओपनिंग ठीक कर ले तो बाकी पूरी टीम तो हमारी एकदम सेट है? क्योंकि अगर मैं पर्सनली बात करूं तो जो मैंने साउथ अफ्रीका की सीरीज देखी थी जो हम हारे थे, आई डिड फील कि हमारी बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा सब पार थी उसमें। तो डू यू थिंक कि इनकी अपनी ये थिंकिंग ये है कि अगर हम ऊपर से बैटिंग ठीक कर लें तो बाकी ये हारिस, शाहीन और ये जो बाकी इन्होंने बंदे भर दिए अंदर, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से टीम में कैरी कर रहे हैं, ये संभाल लेंगे? शायद ये थॉट प्रोसेस हो। आई थिंक अब ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये इतनी बड़ा स्क्वाड है, अब इसके अंदर अगर आप बॉलिंग अटैक देखते हैं तो आपके पास शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और अब्बास अफरीदी 4 पेसर्स हैं। तो लेट से अगर आप सुफियान मुकीम के साथ जाते हैं और या ब्रार के साथ जाते हैं एज अ स्पिनर, तो आप 3 पेसर खिलाते हैं। और अगर आप जहांदाद के साथ चलते हैं तो आप 2 पे भी जा सकते हैं। तो आप शाहीन को और रऊफ को 5 मैच ना खिलाएं, आप इनको 2-2 मैच दें, और बाकी बॉलर प्लेयर्स को 5 मैच दें आप पूरे के पूरे। क्योंकि ये आप एज अ बैकअप रखें ना कि यार अगर आपको लग रहा है यार यंगस्टर आया, पिट गया 1-2 मैचेस में, उससे नहीं हो रहा, फिर आप शाहीन और रऊफ को लेके आए। अगर आप पहले मैच से शाहीन और रऊफ को, तो फिर आप टेस्टिंग नहीं करें ना। आप बेसिकली उनको एज अ बैकअप, आप उनके साथ बात करें, आप उनको कहें यार आप एज अ सीनियर बॉलर आए हो, जब हमें जरूरत होगी हम आपको ले आएंगे टीम के अंदर, लेकिन स्टार्ट जो है वो हम बच्चों से करेंगे। लेकिन यस, तो लेकिन चलो, अगर ये आई एम गोइंग मेंटेलिटी टू है तो ठीक है। अब आई एम गोइंग टू टेक द डिस्कशन टू उस्मान, क्योंकि हमने उस्मान आपको बाईपास किया। तो ओके उस्मान, अब कमिंग बैक टू यू, तो पॉन्स्टोन वाली सर्जरी तो हो गई है। डू यू सी दिस सर्जरी working? Do you see Pakistan, मतलब how do you see Pakistan performing in New Zealand? Because the tour is I think just maybe 10-11 days away. 5 T20s, 3 ODIs, एक अच्छा time period है where you can test your changes. Do you think it's going to work, या मतलब वही पिछले I साल जो think गए surgery को मैं कहूँगा surgery is just like this and Pakistan is going to perform just like this. ठीक है? I'm sure आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है ना यार, इसके अंदर as औरंगजेब said before कि यार यार वो नजर नहीं आया, दोबारा से दिखाएं जरा वो ऊपर करके। आपको चाहिए तो मैं आपको दे भी देता हूँ, आपको रोज़ा नहीं है तो, मेरा तो रोज़ा है। बट एनीवेज, तो ये बेसिकली पाकिस्तान ने सर्जरी किया है। हुआ ये है कि आपने ना जो आपके बेसिकली जो 2 बड़े प्लेयर आपने निकाल दिए ताकि जो बाकी लोग हैं उन पे इल्ज़ाम ना आ सके। बेसिकली हुआ ये है। और सेकेंडली आई डोंट सी पाकिस्तान विनिंग दिस न्यूजीलैंड टूर ईदर,
क्योंकि जो सर्जरी होनी थी ना उस तरह नहीं हुई। सर्जरी का मतलब ये है कि आपको ऊपर से, यानी कि जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आर्मी चीफ को हटाना पड़ेगा और उसके नीचे आपको, आपका जो है पीसीबी चेयरमैन, उसको, और उसके जो आकिब जावेद है, जो ऊपर से लोग नहीं हटेंगे। और जो बेसिकली वही होता है ना, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक बाल्टी है, उसके अंदर अगर एक भी कतरा होगा ना गंद का, तो वो सब चीजों के ऊपर इफेक्ट करेगा। इवन नाउ ये देखो, रिजवान अभी तक खेल रहा है, आगा खेल रहा है, ये सारा आपको स्टार्टिंग 11 हटानी होगी अपनी। आपको टू बिगिन विद पूरा का पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने कहा गद्दाफी स्टेडियम नया बनाया, नया नहीं बनाया उन्होंने उसको। बेसिकली वो बंदा जो नहीं है, क्या नाम है हमारा, जो पीसीबी चेयरमैन है, मोहसिन नकवी, उसको कहो कि वो जाके रोडे बनाए, पुल बनाए। ये इन कामों में अच्छा लगता है, फोटो शोटो खिंचवाता हुआ, फीते काटता हुआ वो बंदा अच्छा लगता है। ऐसे ये क्रिकेट के ग्राउंड में बंदा अच्छा भी नहीं लगता उसको, ऐसा लगता है नॉन क्रिकेटिंग बंदा आ गया। किसी आपने चपरासी को उठा के ऊपर बिठा दिया है और वो ऐसे करके जा रहे हैं, जो तेल लगाया हुआ है उसने सर पे। और इट जस्ट डजंट लुक प्रोफेशनल। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू क्रिकेट, आई थिंक पाकिस्तान की टीम को जो है वो ऑलराउंडिंग, जिस तरह औरंगजेब ने पहले कहा था कि ऑलराउंडर्स के हमें ना, बेसिकली हमारी टीम में तकरीबन 7 से 8 ऑलराउंडर होने चाहिए। एक स्पेशलिस्ट कीपर होना चाहिए जो मोहम्मद हारिस होना चाहिए, और बाकी एक दो स्पेशलिस्ट बॉलर होने चाहिए चक्रवर्ती की तरह के, जो आपको पता है कि यार ये बंदे माठे हैं, कैच शैच नहीं करेंगे, ये लोग थोड़े से जो है ना हल्के लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन ये बॉलिंग पे बात आएगी ना तो दे आर नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज, दे आर गोना गो ऑल आउट। तो अगेन, ये जिस तरह हमारी ओडीआई टीम अभी अनाउंस हुई है, इसके अंदर रिजवान फिर आपने कैप्टन रख लिया है। रिजवान की जगह नहीं बनती थी इसके अंदर, सलमान अगा की भी जगह नहीं बनती थी, अब्दुल्ला शफीक जो एक फ्लॉप प्लेयर था उसको आपने फिर से मौका दिया है। आपको चाहिए था कि आप बेसिक डोमेस्टिक से ना प्लेयर्स लेके आओ और आप सबको फिर एक नया चांस दो। अब जब दे रहे हो सबको चांस, तो सबको दो ना यार। आप पीछे अपने सीनियर प्लेयर क्या कर रहे हैं खड़े होके? व्हाट आर दे गोना डू? दे आर जस्ट गोना स्टॉप द गेम। जिस तरह पहले पाकिस्तान की एक हैबिट है कि वो एक बंदा एंकर खड़ा हो जाता है और वो आके प्रेशर, मिसबाह हक से आदत लगी हुई, उससे भी पहले से आदत लगी हुई, जबकि पहले मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं थी, जब मोहम्मद यूसुफ और ये यूनुस खान और ये इंजमाम थे, तब चलो आप कर लेते थे ना, यानी कि 100 बॉलों पे 70, 100 बॉलों पे 50, यू नॉट गोना गेट बैश्ड एट। अभी आप करोगे ना, सो नोबडी इज गोना लाइक यू। बेसिकली आपने पाकिस्तान टीम का पूरा मोराल, पूरी पूरी कंट्री को आप नीचे लेके आ गए। यू कैन डू स्टफ लाइक दैट। तो यानी कि ये जो बाबर आजम है, इसकी ओडीआई में जगह नहीं बनती है अभी फिर से। नसीम शाह फिर से वापस आ गया है, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, ये फ़हीम अशरफ टेपिया, इमामुल हक सिफारशी, ये सारे के सारे, इनको थोड़ा सा इजी होके बाहर बैठाओ। आपने अगर सर्जरी करनी है, वही मैंने कहा जैसे पहले बात की थी कि सर्जरी के अंदर आप हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए गए हो और आपको पोन स्टोन दे के वापस भेज दिया उसने कि चलो हो गया तुम्हारा। दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंड। और ये मेरा टेक है इसके नहीं, अंदर कि यार I agree सर्जरी। Usman. Like I mentioned, it's really hard to disagree with you. Like बंदा हर एक प्लेयर देखता है तो बंदे को गुस्सा ही चढ़ता है. But Daniel, I think you want to add Yes, something. I actually had a question for all three of you. What do you guys are defining as surgery here? कि सर्जरी ये है कि एक नया टैलेंट हमें आइडेंटिफाई करना है, कोई नए लोग लेके आने हैं, प्लेयर्स जो कि अच्छे परफॉर्मेंस अच्छी कर सकें, कोई नए यंगस्टर्स लाने हैं। क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से हो रहा है पाकिस्तान में। एक जो मुझे लगता है हमारे क्रिकेट में एक मसला है वो ये है कि एक टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, बहुत अच्छा मतलब वर्ल्ड क्लास टैलेंट होगा, लेकिन हम उसको कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो इम्प्रूव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अहमद शहजाद, उमर अकमल, नासिर जमशेद, इवन बाबर आजम नाउ। आप मुझे कह सकते हैं कि यार बाबर आजम आज इज अ बेटर प्लेयर देन व्हाट ही वाज इन 2020 2021? कोई डेवलपमेंट हुई नो, आई उसमें? थिंक क्या शाहीन शाह में हुई ही है, हारिस रऊफ में हुई है, नसीम शाह में हुई है, इन सब किसी एक? लोग इन सब लोगों ने इन सब इन लोगों ने सब में अपना नहीं पीक होगी। टच कर और लिया ये हुआ है। पाकिस्तान में काफी अरसे से ये प्रॉब्लम है। तो सर्जरी अगर करनी है तो कोई ऐसी सिस्टमेटिक सर्जरी हो कि अगर कोई टैलेंट आइडेंटिफाई भी हो तो वो आप देखो उसको जो रूट की तरह या स्टीव स्मिथ की तरह या कोहली की तरह, कि जो अपनी गेम यार को आप इम्प्रूव देखो, कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आप Daniel, देखो आपने जो इन सब क्वेश्चन का जो पूछा है था ना ना. लेवल, बेसिकली हमें इनको कंपेयर करना पड़ेगा मियां खलीफा से। मियां खलीफा भी एक पीक पे गई थी, उसके बाद नीचे आ गई थी मियां खलीफा भी। तो ये भी इनका भी सिमिलर लेवल है। इन लोग ये लोग ये लोग पीक पे गए हैं, ठीक है, अब ये लोग नीचे आ गए हैं। सो देयर इज नो गोइंग बैक। सीधी सीधी बात है। I'll let नहीं, अली मैं इस अब्बास पे और दानियाल, औरंगजेब I'll आंसर answer हैं। your question. जब मैं सर्जरी एंड देन ऑब्वियसली हम औरंगजेब को करेंगे एंड देन we'll conclude this podcast. दानियाल, when I talk about a surgery, मेरा सिर्फ ये मानना है कि जिन प्लेयर्स ने पिछले 6-7 साल से एक बैगेज accumulate किया हुआ है ना, you need to let them rest for a while. 1 साल 1.5 साल इनको पिक्चर सेट आओ. शाहीन अफरीदी बहुत ज़्यादा बैगेज इकट्ठा कर चुका है, हारिस राव बहुत ज़्यादा बैगेज इकट्ठा कर चुका है, मतलब हर दूसरे तीसरे मैच में उन पर रिकॉर्ड टूट रहा था मोस्ट रन्स का. ये बाबर आजम मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ बैगेज इसने इकट्ठा कर लिया. रिजवान बीइंग द अदर वन, नसीम शाह ऑब्वियसली इंजरी के बाद ही हैजंट बीन द सेम. इनको आपको कुछ टाइम के लिए सीन से बाहर करना है.
you play the youngsters and you tell इनको आप बेशक कह दो कि यार 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उस वर्ल्ड कप तक there is no place for you in the team, ठीक है? if you keep on performing and if things are not going well, we'll call you back, but एक hard stop लगाना पड़ेगा and then you'll have to back the youngsters. ये जो makeshift arrangement for some reason मुझे ऐसा लग रहा है कि आकिब जावेद is playing to the masses a lot, क्योंकि वो अगर if he really wanted to be aggressive वो सबको हटा सकता था, उसने नहीं हटाया. तो I feel like कि आप वो होता है ना कि एट टाइम्स अगर आपको किसी चीज़ को बिल्कुल ही जान छुड़ानी है तो यू हैव टू जस्ट किल इट फ्रॉम द रूट्स. यू हैवंट किल्ड व्हाट वाज नीडेड, व्हाट हैड टू बी किल्ड फ्रॉम द रूट्स. आपने थोड़ी सी गुंजाइश अभी भी छोड़ दी है विच माइट जस्ट ग्रो बैक अप एंड एंड अप कॉजिंग लॉट ऑफ हार्म टू यू. तो ये मेरा ओपिनियन है. बट Same as cancer. सेम एज कैंसर. बट औरंगजेब, ओवर टू यू. व्हाट डिड यू आई थिंक एक्सपेक्ट? और फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी अपने दे दें आप. श्योर. आई थिंक एक फियर सबको यही है कि अभी ये टीम से 2 3 4 जो प्लेयर निकले हैं, ये एशिया कप आएगा T20 फॉर्मेट का, तो ये उसमें फिर वापस आ जाएंगे बाबर और रिजवान. और ये 3 4 दफा सवाल हुआ है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने यही बोला है कि वी आर गोइंग विद अ डिफरेंट अप्रोच. उन्होंने ऑब्वियसली ये नहीं कहा कि इनको हम नहीं रखेंगे, पर उन्होंने कहा कि दे विल हैव टू लाइक डू अ लॉट बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग टुडे. और अगेन अगर पीएसएल आपने वो बैरोमीटर रखना जिस तरह का उसका स्टैंडर्ड है, और उसमें अगर बाबर कोई 50 बॉलों में 200 भी मार देता तो मैं उसको काउंट नहीं करता. बिल्कुल ऐसे ही. सॉरी, ठीक है. अच्छा, अब जो बात है वो जो दानिया ने बड़ी अच्छी बात की है कि अब हमारे अगर आप देखें कि अभी जिस तरह मोहम्मद शामी आज खेल रहे थे, उनकी 200 प्लस ओडीआई विकेट्स होंगी, मे बी 250 हों, मतलब काफ़ी ज़्यादा होंगी एटलीस्ट. और हमारे बहुत कम ऐसे बॉलर, आई थिंक शाहीन अफरीदी एक बॉलर है जिसकी 100 विकेट्स हैं, और बाबर आजम में भी है जिसके 6-7 हज़ार रन हैं. वरना किसी का भी कैरियर जो है वो लंबा नहीं है किसी भी फॉर्मेट के अंदर. और आई थिंक ये हम पीसीबी को और मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ों को हम ब्लेम देते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन देखें, जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है ना, हमारी मैनेजमेंट शुरू से ही ऐसी है. इमरान खान के टाइम से ऐसी है, ठीक है. प्लेयर्स चेंज होते थे. 92 वर्ल्ड कप के बाद फौरन पहले सेलेक्टर ने रिजाइन कर दिया, हम बगैर सेलेक्टर्स के वर्ल्ड कप खेलने गए. सो द पॉइंट इज के प्लेयर्स जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं ना, तो आप जब देखें, आई अंडरस्टैंड कि कोई बच्चे को डोमेस्टिक में चांस नहीं मिल रहा ना, तो वो अगर कहे कि यार सिस्टम बुरा है, मेरा टैलेंट को रिवॉर्ड नहीं किया गया, तो मैं एग्री करूंगा उसकी बात से कि हाँ यार, उसको ना सिस्टम की वजह से उसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं या वो नहीं आ पा रहा. लेकिन जो बंदा टॉप पे आ गया, एक दफा इंटरनेशनल प्लेयर्स से मिल लिया, लीग्स खेल ली हैं, तो ये चीजें सारी आप एक्सक्यूज आपके पास है नहीं कि यार मेरे से गेम इंप्रूव नहीं हुई 3 4 साल. आकिब जावेद ने आपको स्पून फीड नहीं करना आके कि यार ये वाली नेट प्रैक्टिस कर लो, यार ये ऐसे कर लो. ये कोचेस का काम एक हद तक है. आप कोच के पास जाओ, यार आप मैं सॉरी आपकी जरा थोड़ा सा ज्यादा फ्रैंकली होकर बात करूंगा, ये डब्ल्यू ब्लॉक में डीएचए में रहता है बाबर, इसकी पिछली वाली गली में यूसुफ रहता है, थोड़ा सा आगे जो इंजमाम रहता है, ये सारे पाकिस्तान के बैटिंग लेजेंड इधर इसके साथ 3 4 गलियों में रहते हैं. तो कभी इसने आज तक कहा कि यार आ जाएं जरा 15 दिन के लिए मुझे. जब वो 2014 में कोहली आउट हुआ था एंडरसन से, वो तो सचिन के पास पहुंच गया था. सचिन को लेके वानखेड़े में खड़ा हुआ था, 2 हफ्ते नेट किया उसने कि यार ये मुझे ऑफ स्टंप समझा दो, मुझे नहीं समझ में आ रही, मैं आउट ही जा रहा हूँ बाबर बार भी बार तो जाके. पैडल खेलने पहुंचा है उस्मान कादिर के साथ, तो आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? यार वो एक उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट लाइक द पॉइंट इज कि इन लोगों ने अपनी भी हेल्प नहीं की है. आई डोंट नो, मे बी ये बहुत जल्दी रज जाते हैं, इनको लगता है यार हमने गाड़ियां ले ली हैं, घर ले लिए, बस ठीक है, इतना काफी है. लेकिन एक चीज होती है कि यार लेगेसी आप छोड़ के जाते हो ना, और वो लेगेसी पता है किस तरह आती है? वो लेगेसी इस तरह आती है कि लाइक वी ऑल कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे हमारे फादर्स मिलिट्री में थे. तो अगर आप किसी भी मिलिट्री बेस में चले जाते हैं, किसी उसके एस्टेब्लिशमेंट में चले जाते हो, तो आप एयरफोर्स देखते हो में कि थे, यार एयरफोर्स में थे. उधर एक जस्ट लेगेसी टू की क्लियर, तस्वीरें एयरफोर्स लगी में हुई थे, होती आर्मी हैं. में नहीं थे. एयरफोर्स में थे, आर्मी में नहीं थे. जस्ट टू क्लियर. मिलिट्री बोला मैंने, हाँ हाँ. दैट्स एयरफोर्स. व्हाई. या तो वो मैंने आपने देखा होगा कि पिक्चर्स लगी होती हैं पुराने लोगों की, या मार्टर्स की पिक्चर्स लगी होती हैं, या उन्होंने क्या क्या जीता हुआ है उसकी पिक्चर्स लगी होती हैं. तो वो एक एफिलिएशन आप क्रिएट करते हो ना. बेसिकली वो एफिलिएशन क्रिएट करने का तरीका होता है कि यार एक यंगस्टर अगर आया है तो उसको जरा एफिलिएशन मिले कि यार यहाँ पे पीछे पीछे लोगों ने क्या क्या काम किए हुए, ग्रेट काम किए हुए हैं. तो आई डोंट थिंक कि इनका उस तरह से माइंडसेट है कि यार मैंने पाकिस्तान के लिए क्या ग्रेट करके जाना है. क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि यार एक बंदा 8 साल से बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान टीम में और टॉप प्लेयर, और उसको स्वीप नहीं मारनी है अभी तक क्योंकि उसने सीखी नहीं है. तो दिस कैन नॉट हैपन यार. ये अब आप कह दो यार Yeah. पीसीबी के कोचेस चेंज हो गए, सेलेक्टर चेंज हो गए, इसलिए मैंने स्वीप नहीं सीखी. This cannot happen, but it एक को continues to स्वीप happen. नहीं आई, मैं भी एक को ऑफ साइड नहीं खेलनी आई रिजवान को. मैं भी देख रहा था फेसबुक हाँ, पे तो पोस्ट. वो फिर मोहसिन नकवी की या नजम सेठी की गलती है. नहीं, मैं भी ऑनेस्टली मैं भी एक पोस्ट देख रहा था यार जिसमें मुझे से भी ये यही कहा लगता था है कि बाकियों को चांस देना चाहिए. बिकॉज ये जो लोग हैं ना, ये अपने बस वही इनका स्टाइल ऑफ प्ले. दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स इन द आर्सेनल. आई मीन यू हैव टू गिव समवन एल्स द चांस.
ऐसे तो नहीं होगा ना Just like बेसिकली। Usman, you'll have to give me a chance now to I conclude will the give you a chance, podcast man. because we're nearing 40 minutes. Like, thank you to everyone who has been along with us in this journey over the last 40 minutes. मैं भी Facebook पे post देख रहा था तो किसी ने ये लिखा हुआ था कि if you're not going to drop someone from the team, why would they feel the need to improve? Like जैसे दानियाल ने कहा स्वीप शॉट या ऑफ साइड, या औरंगजेब ने कहा कि डिफरेंट चीज़ें। बाबर आजम जब टीम से ही नहीं ड्रॉप होगा, जब उसके लिए एक फॉर्मेट गारंटीड है क्योंकि उसका नाम बाबर आजम है, तो उसने क्या इंप्रूव करना है ना, वो ऑफ साइड और इंप्रूव आप करेगा सॉरी ना। सॉरी सॉरी या बिल्कुल लाइक शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट है, आप ये देखो कि यार जायसवाल को देखो यार, वो बाहर बैठा हुआ है, मतलब उसने क्या किया है ऐसा कि वो बाहर बैठा हुआ है। मतलब इतना कट थ्रोट कंपटीशन है। कभी ये शुभमन गिल 100 पे 100 करके आया, 50 पे 50। अभी ये पिछला मैच भी उसका नहीं इतना अच्छा गया, ये वाला भी नहीं गया। लेट से अगर वो फाइनल में फेल हो गया, यू मे नॉट बी सीइंग हिम लाइक वो, यानी कि वो थोड़ा सा उस पर प्रेशर आ जाएगा इस चीज का कि यार अब मैं क्या करूं। उधर अगर अभिषेक परफॉर्म कर गया ज्यादा और भी, तो हो सकता है जायसवाल और अभिषेक बिल्कुल शर्मा ओपन कर रहे हो। बिल्कुल सो बिल्कुल। उस लेवल का कंपटीशन जब अकाउंटेबिलिटी, तक आप नहीं क्रिएट करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। accountability, competition, things that are missing in Pakistan cricket. But let's see. कल second semi-final है. Obviously, may the best team win, and then we'll be joining you again after the final, which will be taking place in Dubai. And हमारे जो star-studded panel है, Danial, Usman और औरंगजेब का, they'll be here to discuss the matches. So Let's thank you take so the much. predictions for the next match. Good point, Usman. Starting with you, what is your prediction for the final? Yeah, मैं what तो is your कहता हूँ prediction for the पाकिस्तान, semi-final? पाकिस्तान, Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद। I'm Pakistan just kidding. जिंदाबाद। मुझे Daniel, लगता है who's winning the मुझे लगता है semi-final? न्यूजीलैंड, मुझे लगता है न्यूजीलैंड इज गोना अच्छा, come सेमीफाइनल on फाइनल top. दोनों की प्रेडिक्शंस है दोस्तों। या न्यूजीलैंड और उसके बाद न्यूजीलैंड यहाँ पे लटा देगा इंडिया को ऊपर। न्यूजीलैंड। दानियाल, I think South Africa और फिर India. औरंगजेब। I'll go with Daniel, South Africa and India. I'm saying South Africa because I've seen the games in Lahore. मैं एक दफा ग्राउंड में भी देखने गया हूँ मैच। I think it's a extremely flat pitch, like पूरा स्क्वेयर ही बहुत फ्लैट है। और I think the flatter the conditions are, South Africa के बैटर्स के लिए मतलब they can throw New Zealand out of the game. चले चले, मेरी अपनी प्रेडिक्शन यही है कि आई थिंक इट्स गोइंग टू बी न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड, बट लेट्स सी, विल होपफुली विल जॉइन यू बिफोर द फाइनल। थैंक यू सो मच एंड मे द बेस्ट टीम विन द टूर्नामेंट।